السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی بہن، میرے دوست اور میرے ناظرین اور میرے درشک، آج میں آپ کے لیے پھر سے ایک بہترین علم لے کر آیا ہوں۔ یہ علم ہے کہ اپنے قلب کو یعنی اپنے دل کو اللہ کا ذکر کرنے والا کیسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک کسی انسان کا قلب یعنی دل یعنی روح اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں بنتا، تب تک وہ روحانی منزل نہیں طے کر سکتا۔ کوئی بھی روحانی منزل طے کرنے کے لیے، روحانی سفر کو طے کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے یہ شرط اول ہے۔ تو چلیے اس ذکر کا کیا کیا فائدہ ہے اور کیا کیا طریقہ ہے، جو سب سے افضل طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے، میں وہی بتاؤں گا۔ اس کو بتانے سے قبل میں اپنی ایک چھوٹی سی تعارف آپ سے کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں انڈیا سے ہوں۔ انڈیا میں ایک بہار اسٹیٹ ہے، وہاں ایک مظفر پور ضلع ہے، میں اسی مظفر پور ضلع سے ہوں۔ مجھے لوگ عامل بابا کہتے ہیں۔ میں 2001 میں اس لائن میں قدم رکھا تھا اور لگ بھگ 120 سے زیادہ قریب میں نے چلے اور عملیات کیے ہیں۔ اس لائن کا کوئی بھی چیز مجھ سے چھوٹا ہوا نہیں۔ 150 سے قریب زیادہ روحانی لشکر آج کے ڈیٹ میں میرے پاس ہیں، جو اللہ کے حکم سے میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میں جو کچھ بھی آپ کو اس میں بتاؤں گا یہ سب میرا پریکٹیکل ہے، اور ساتھ میں اس پریکٹیکل میں سے میں انہی چیزوں کو آپ کے لیے بتاتا ہوں جس کو آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ جن چیزوں کو آپ نہیں کر پائیں گے، عام طور پہ وہ چیزیں میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو پریشان کرنا یا کنفیوز کرنا قطعی نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں روحانیت بھی آئے، دنیا داری بھی رہے، اور سب آسانی سے ہوتا رہے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی فائدہ تو وہی لوگ اٹھا پائیں گے جس کے اندر اس چیز کی طلب ہوگی، شدت ہوگی۔ اگر طلب ہی نہیں ہے تو چاہے میں جتنا آسان بنا دوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قلبی ذکر کا جو معاملہ ہے، یہ زیادہ تر بزرگوں نے، جو جنید بغدادی اور حسن بصری جو صوفیاء کرام تھے، انہی لوگوں کے دور سے اس چیزوں پہ کھلم کھلا کہہ لیجئے یا ظاہری طور پہ زور دیا جانے لگا تھا۔ اور جب دور آیا تھا بڑے پیر کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو انہوں نے اس چیز پر اور زیادہ زور دیا تھا۔ یہ بڑے بڑے پیروں نے یہ سب طریقہ اسی لیے نکالا کہ جو وہ محنت کرتے تھے، جس پر وہ خود عمل کیے تھے، وہ سارے طریقے پہ عام لوگوں کا چلنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس میں سے چھوٹا چھوٹا طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کیا تھا تاکہ اپنے شاگردوں کو بتائیں اور روحانی سفر کرائیں۔ ان تمام طریقوں میں سب سے افضل طریقہ اور ایک طریقہ، سب سے افضل طریقہ اور ایک طریقہ جس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، جن لوگوں کے پاس پورا کا پورا ٹائم ہے، یعنی وہ کوئی ایسے جاب نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو ڈسٹرب ہو سکے،
तो उसका तरीका मैं पहले बताता हूँ। उसके लिए ये तरीका है कि वो पांचों नमाज के बाद, और अगर तहज्जुद पढ़ता है तो 6 नमाज के बाद, इशराक पढ़ता है तो 7 नमाज के बाद, यानी करने का मतलब कि हर नमाज के बाद वो 15 मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना है। इतनी आवाज से करनी है कि कान में आवाज साफ साफ जानी चाहिए, और खूबसूरत लहजे में करना है, यानी जो आप पढ़ सकते हैं। मसलन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इसी तर्ज पर, यही तरीके पर, यानी कहने का मतलब यह है कि अच्छे लहजे में और अपने दिल से पढ़ना है। जो नहीं कि जो लहजा हमने इस्तेमाल किया वही लहजा आपका हो, इससे खूबसूरत भी आपका हो सकता है। जिसकी आवाज़, अब कोई हाफिज कुरान है जिसकी आवाज़ और ज़्यादा प्यारी अच्छी है, उसकी और इससे अच्छी हो सकती है। तो कहने का मतलब मैंने एक तरीका बताया है, अंदाज बताया है, इस तरीके से पढ़ना है। 15 मिनट, 15 मिनट का अलार्म आप लगा लीजिए मोबाइल में, आजकल मोबाइल आम है, हो गया। अब 15 मिनट फिर अब आंख बंद करके और मन ही मन में पढ़ना है। ये थोड़ा मुश्किल किसी किसी को लग सकता है, मगर आसान है, मुश्किल नहीं है। आंख बंद कर लिया और मन ही मन में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। ये भी आपको 15 मिनट करना है। ठीक है, ये भी आपको 15 मिनट करना है। फिर इसमें भी आप अलार्म लगा लें। तो ये आपको जितनी भी आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आपने आपको सारी नमाजें पढ़ते हैं, 5 वक्त, 6 वक्त, 7 वक्त, जो जो आप पढ़ते हैं, सबके बाद आखिर में, सबसे आखिर में दुआ वगैरह मांगने के बाद सबसे आखिर में ये जिक्र किया करें। ये हो गया उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्री है, जो पूरा इसको कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एकदम फ्री नहीं है, कोई स्टूडेंट है, किसी को दिमागी काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम है दुनिया में, उसके लिए है कि सबसे, यानी वो 2 टाइम की कोशिश करे, एक बार सुबह फजर के बाद और एक बार रात में इशा के बाद, 2 वक्त की कोशिश करे और पढ़ने की। और अगर जो 2 वक्त की भी नहीं कर सकता है, वो कम से कम 1 वक्त की भी पाबंदी कर ले। अगर कोई 1 वक्त की भी नहीं करेगा तो वो इस इल्म का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। कम से कम 1 वक्त तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ये अनिवार्य है, ये नेसेसरी है। अब ये इस जिक्र को करना है आपको जब ये जिक्र आपका 3 महीना जब गुजर जाएगा, लगभग मान लीजिए 100 दिन गुजर जाएगा, 100 दिन हो जाएगा, तब आपको क्या करना है कि सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ 100 दिन के बाद आंख बंद करके जो जिक्र करते हैं उसमें अब क्या करना है कि आसमान की तरफ आंख बंद करके ध्यान लगाना है, आसमान की तरफ, और आसमान पे ये तस्वीर करना है
कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ। अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आप जाहिल भी है नहीं पहचानते हैं तो किसी भी पढ़े लिखे से आप ला इलाहा इल्लल्लाह किताब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। दुकान में कार्ड वगैरह पे लिखा रहता है, वो आप ले ले, उसको बार बार गौर से देखेंगे और वैसे ही तस्वुर करेंगे कि आसमान पे लिखा हुआ, और मन ही मन में पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह और उसको ला इलाहा इल्लल्लाह को ध्यान में ला रहे हैं तस्वुर में कि ऊपर लिखा हुआ है आसमान पे। अब ये सिलसिला वहां से चलेगा, ठीक है। अब ये सिर्फ आंख जब बंद करके पढ़ना है, कोई आवाज से नहीं पढ़नी है, ये काम तब करना है, ये तस्वुर तब करनी है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे, जब इसको आपके 40 दिन जब गुजर जाएगा, कुछ लोगों को तो 40-20 दिन गुजरेगा, उसके बाद ही कुछ कुछ चीज दिखाई देने लगेगी, गैप की चीजें, और कुछ लोगों को 40 दिन के बाद जो है थोड़ी थोड़ी सी चीज दिखाई देने लगेगी। देखिए, जो चीजें दिखाई देने लगेगी वो उसके पहले जो उसकी रूहानी सलाहियत अल्लाह ने उसको पहले से जो नवाज रखा है, ये उस पर मुनहसर है। इसीलिए किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा देरी से होता है, एक बात। दूसरी बात कि मुझसे उसको जितना लगाव होगा, मेरे ऊपर जितना उसको भरोसा होगा, उसी के हिसाब से भी उसकी तरक्की होगी। ये मैं आजमा कर देख चुका हूं। क्योंकि माना कि मैं सब जगह एक साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा रब तो सबके दिल की बात जानता है। वो जानता है कि किसको मेरे ऊपर कितना भरोसा है या किसको नहीं है। तो जितना ज्यादा मुझ पर भरोसा होगा, उतनी जल्दी उसकी तरक्की होगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और मैं समझता हूं कि ये बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया है रूहानी लाइन का, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है मैं चाहता हूं कि वो इसमें नहीं बताऊं, नहीं तो समझने में आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी कि कोई इसको उसमें घुसार देगा मैंने और कोई उसको इसमें ले आएगा। इसलिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं तैयार करके उसमें बता दूंगा। ये सबसे अफजल जो तरीका है, आसान तरीका है जो मैंने बता दिया है, ये कल्ब को जाकिर बनाने का, अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाने के लिए ये सबसे अफजल तरीका है। इस तरीके से अगर आप जिक्र करते हैं तो आप रूहानी मंजिल तो तय कर लेंगे, अल्लाह के जल्दी करीब हो जाएंगे, अल्लाह का नूर आपके दिल में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद जब आप कोई अमल करेंगे तो उसमें जल्दी कामयाबी मिलेगी, दुआ जल्दी कबूल होगी आपकी। और जब आप इस दुनिया से जाएंगे और कल्ब आपका जाकिर हो चुका है, तो आपकी जो रूह है वो वहाँ रूहानी दुनिया में, यानी क़यामत से पहले और मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, जिसको आलम बरज़ख भी लोग बोलते हैं, या कब्र की ज़िंदगी या रूहानी ज़िंदगी, वहाँ आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आप नमाज पढ़ते हैं, बाकी जो इबादत करते हैं, वो सब मरने के बाद छूट जाता है, लेकिन इस जिक्र का फ़ायदा वहाँ आपको मिलता है, ठीक है। यही वो जिक्र है जिसको कर लेने के बाद यह एक बीज है अल्लाह के नाम का, जो रूह के अंदर में पहले बोया जाता है, डाला जाता है, और जब ये फलने फूलने लगता है तब जाकर वो रूहानी तरक्की होती है, और फिर रूहानी सफ़र, और फिर बहुत कुछ आप पाएंगे जो चमत्कार और करामत वगैरह जो सब कुछ होता है इस लाइन में, वो सब की शुरुआत बिंदु जो है, यानी कि ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट,
وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اجازت آپ سب کو دے رکھا ہے۔ جب میں زندہ رہوں تب بھی اور جب نہ رہوں تب بھی کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، عورت مرد کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس میں آرام سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو اس لیے آپ کو میں نے شارٹ میں اور جلدی جلدی میں نے کام کی بات بتا دیا ہے، اور اس کا پارٹ 2 بھی میں بناؤں گا ان لوگوں کے لیے جو اس میں لائن میں اور فاسٹ چاہتے ہیں ترقی، ان لوگوں کے لیے یہ عام راستہ میں نے بتا دیا ہے۔ تو چلیے، جو عام بھی ہے اور یہ خاص بھی ہے، جو مجھے دل سے پسند ہے، جو میں اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں۔ تو چلیے پھر ہم آپ کو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دوسرے دھماکے دار علم کے ساتھ، جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے اور دماغ کو تقویت دے ویسے علم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا بھی خیال رکھیے۔ چلیے، اللہ حافظ۔